Good morning, everyone, and welcome all. Thank you for joining us today for today's webinar. I'm Mrs. Jyoti Ravindra Hiremat, IQSC Coordinator and Head of Fashion Design Department. On behalf of the CNCVC and Cyber family, I welcome you all for this webinar. Today, we are presenting a webinar on Enterprise and Labor Management in Clothing Industry by Ms. Shraddha Sontake, CEO and founder of Arshavi by Shraddha, set up at Bangalore. Just before we start, I have some instructions for the participants. If you have questions in the question box, we will bring them up during the presentation. You can also ask questions at the end of the sessions, and for asking questions, please raise your hands. Then we'll unmute your mic. The feedback link will be provided to you in the chat box during the feedback, or else you'll not get your e-certificate. Now I request Mrs. Pradnya Kapdi to give a brief introduction of today's resource person, Ms. Shraddha Sontake. Good morning, everyone. I would like to give a brief introduction about Shraddha Sontake. Shraddha has her basic degree in fashion designing and completed her master's in business management, specializing in HR and marketing. She started her own business in 2012 under the brand Arshavi by Shraddha. She herself is the CEO and founder of this firm. Her expertise are in custom-made clothing for the people. Thank you. Thank you, Pradnya ma'am. Just before we begin, I just request our respected principal, Dr. A.R. Kulkarni sir, to address the gathering. Hello, good morning to everybody. On behalf of the college, warm welcome to the resource person and all the participants to today's webinar. The webinar, what we decided today, finalized by the Department of Designing, in coordination with the IQVC, is a very good topic on enterprise and labor management in clothing industry. This topic had a great relevance post-COVID, because every industry is and also up and down. Economics has been totally collapsed. And the biggest problem after the COVID is that how to develop and improve the economy of any enterprise. And more biggest is that how to make use of the effective use of labor management. Now getting good labor, trained labor after COVID is difficult. So industry is going lots of up and down. In this context, today's webinar is of great significance to all the participants today. They understand the needs of the industry, issues of the industries, and how to cope up after the COVID-19 also. So from that point of view, today resource person, being academician, and also with the industry, should be a lot of practical inputs to our students. So I hope that today is going to be very useful to all our participants, and also expect a good feedback for improvement from your side also. The objective of a college, just I want to say about a few words about my college. It's the first college which offers a non-equal education to women with the objective of women empowerment through skill development. That's the objective here. And the courses offered by our college are very unique. They are the first course which comes to university. The first course with a bachelor degree in dressmaking, fashion coordination, bachelor degree in interior designing, BSc food technology, BA multimedia, postgraduate diploma in nutrition dietitian, and last year we started three new courses like BSc environmental science, BCom bank management, and BCom business management. So they're very unique courses, which are really to meet the objective of our women empowerment school development, to meet the requirement courses designed. And without taking much time, I expect that today's webinar is going to be useful to all our delegates, and hope to have a good interaction on long-term basis. I wish you all the best for the participants to this conference. Also at the same time, very thankful to resource person to spare valuable time to make this webinar
a success. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now, without wasting much of time, I would like to turn the speaker on to our speaker today, presenter, Ms. Shraddha Sontake. Over to you, Shraddha. Yeah. Shall I proceed, ma'am? Yes. Hello, everyone, and very good morning to you all. I'm really thankful to my staff for giving me this opportunity to come forward and have a word regarding the enterprise and the labor management in the clothing industry. So today, I just don't want to talk like very much into the subject part of it, but I just wanted to share my experience in the enterprise and while handling the labor, what are the difficulties, what are the opportunities, and how you can actually manage them in the working area. So let's not talk everything in a very sentence format kind. So I'll be talking to you in Hindi and in English, so it will be easy for you to understand the things. Okay. So at first, I'll just I'll tell you about me. I'm Shraddha Sontake. I'm basically from Udgir, Latur, Maharashtra, and I have started with Arshvi, my custom-made clothing firm in Bangalore, in the year of 2015, actually. But then I have initially started with Arshvi with a Facebook page. So I'll just tell you in short about my journey with Arshvi. So girls, I've done my graduation from our own college, CMC VCW Cyber Kolhapur, and I have had a really great experience with the college and the staff, and I've learned a lot many things there. But apart from our curricular activities or apart from our book knowledge, I feel the working experience is totally different than what you actually study in college terms. So I'll just tell you in brief how exactly my journey has started and what all things I've learned from it, and then I'll typically go to the topic of today's topic, like the enterprise thing. Okay. So basically, जब मैंने admission लिया college में, I had like zero knowledge on designing. तो मेरा background था science में, जैसे 11th and 12th मैंने science में किया था, and then suddenly I came to this art firm. So I was मतलब मैं हमेशा से उसमें थी कि मुझे क्लोथिंग के बारे में या फैशन के बारे में हमेशा से जानना था. I was very good in management, but definitely मैंने कभी मतलब ड्राइंग, स्केचिंग या डिजाइनिंग में कुछ मैंने इससे स्पेशल करा हुआ नहीं था. एंड जब मैंने कॉलेज में आई, जब ये मैंने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया, तो मैंने समझा कि यार ये सिर्फ जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं या सुनते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा कुछ इसमें है. तो ईयर बाय ईयर मैंने मतलब इसके डीप में जाके समझा कि बहुत ज्यादा वास्ट है अपना इंडस्ट्री, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री, एंड देयर आर लाइक मल्टीपल चैलेंजेस यू हैव. लाइक जो भी आप फील्ड चूज करोगे क्लोथिंग में, उसमें हर जगह में आपको अपॉर्चुनिटीज भी है एंड चैलेंजेस भी है. तो जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे समझा कि मुझे जो बेसिक्स था उसका तो अंडरस्टैंडिंग आ गया है, बट देन अगर मुझे कल एक प्रोफेशनल, जैसे मैंने एक प्रोफेशनल कोर्स किया है एंड उसके साथ मुझे अपना बिजनेस या मेरा करियर देखना है, तो मुझे मैनेजमेंट स्किल्स भी मेरे में होने चाहिए. तो मेरा वो डिसीजन उस तरफ गया और मैंने MBA ज्वाइन कर लिया. मुझे टिपिकली मार्केटिंग में ही करना था, बट देन मेरे कॉलेज में ऑप्शन नहीं था सिंगल स्पेशलाइजेशन का, तो आई हैड टू गो इट लाइक आई हैड टू टेक इट फॉर HR एंड मार्केटिंग. तो वो भी टचवुड मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया कि मैंने HR में भी अपना MBA किया, बिकॉज उसमें मुझे पीपल मैनेजमेंट जो होता है या मैन पावर मैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. सो दैट टाइम ऐसे हो गया कि मतलब मेरे पास डिजाइनिंग स्किल भी था, मेरे पास मैनेजमेंट स्किल भी था, अभी मुझे चाहिए था वर्क एक्सपीरियंस. तो जिससे मुझे पता चले कि भाई जो मैंने जो पढ़ाई की हो या जो मेरे पास नॉलेज है, whether it is sufficient to actually put into my work. तो ऐसा नहीं था कि मैं सडनली मतलब पढ़ रही हूँ और मैंने बिजनेस किया है, तो उसमें मेरा डेफिनेटली लॉस होता था. तो ये मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ वगैरह डिस्कस किया कि भाई अभी मेरे पास में डिजाइनिंग का भी डिग्री है, मेरे पास मैनेजमेंट का डिग्री है, एंड अभी शायद मैं मेरा काम शुरू कर सकती हूँ या फिर मेरा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ. लेकिन जब मैंने एक्चुअल में मार्केट में जाके देखा, जैसे अदर बुटीक्स में मैंने गई, मतलब अलग 2-3 स्टेट्स में जाके मैंने ट्रैवल किया, वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है स्पेशली रिलेटेड टू क्लोथिंग, जैसे राजस्थान गई वहाँ पे टोटली अलग एनवायरमेंट था इसके लिए. जब मैं मुंबई गई वहाँ पे अलग था. तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिसमें मुझे
मेरे काम के बारे में भी नॉलेज मिले या मुझे ट्रेनिंग मिले, चाहे उसमें मुझे सैलरी मिले या ना मिले. सैलरी वॉज नॉट माई मोटो. तो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड विथ माई वर्क, तो मेरा मोटो ये था कि मुझे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं करना है या मुझे कोई बहुत बड़े बंदे के नीचे काम नहीं करना है. बिकॉज आप जितना बड़ा कंपनी में जब आप पहला स्टेप लेते हो, दैट शुड बी द बेसिक वन. सो इफ यू डायरेक्टली जंप टू द 10th स्टेप, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आप एक एक करके चढ़ोगे तभी जाके आपको हर लेवल पता चलेगा. अगर मैं पहले सीढ़ी से डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे जंप मारूंगी, मुंह के बल गिर जाऊंगी. तो मैंने वही बात सोची और मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब जब हमारे कॉलेज में कैंपस स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे मेरा कोका कोला में भी हुआ था. लाइक मैंने फाइनल राउंड तक आई थिंक आई वाज द ओनली वन जो वहाँ उस लेवल तक गई थी. बट मेरा ये था कि अगर मैं वहां पे जाऊंगी, जो मेरा सेट क्राइटेरिया उन्होंने रखा है कि अभी बीडीए, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, इसको ये काम देना है. तो अगर मैं उस फील्ड में घुसती हूँ तो मुझे आजू बाजू का जो काम हो रहा है या किसी और फील्ड का, क्योंकि जॉब करना ये मेरा लॉन्ग टर्म मोटो नहीं था. मेरा लॉन्ग टर्म मोटो ये था कि भाई मेरा एक प्रोफेशनल कोर्स है, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग का हो या फिर मेरा एमबीए का हो, ये मेरा प्रोफेशनल कोर्स है. एंड ऑन दैट बेसिस आई जस्ट डोंट वांट टू वर्क अंडर समबडी. तो वो मेरा एक था अंदर से कि मुझे कुछ वो पुश कर रहा था कि कोई बड़े कंपनी से भी ज्यादा कोई छोटी कंपनी से स्टार्ट करो, जहाँ पे कोई जब वो स्टार्टअप रहता है उसमें कैसे रहता है कि ज्यादा मैन पावर नहीं रहता है. वो लोग कॉस्ट कटिंग पे बहुत ज्यादा सोचते हैं. उनको कैसे चाहिए रहता है कि 5-6 लोगों की कंपनी हो, कंपनी रजिस्टर हो, कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कुछ भी ऐसा एक नाम हो और काम करे. तो उसमें कैसे होता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो रहती है वो बहुत कम लोगों में डिवाइड हुई हुई रहती है. तो उसमें आपको होता है कि आपको बैंक की स्लिप भरने से लेके पूरे सीईओ के काम तक का हर चीज आपको समझता है. तो जब मेरा कैंपस हो रहा था तो उस टाइम पे मुझे याद आया कि मैंने इंटर्नशिप किया था एक कंपनी में. दैट वाज एन एडवर्टाइजिंग फर्म, जहाँ पे लाइक इंटर्नशिप समझ लीजिए 1.5-2 महीने का था. लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि हर लेवल पे हमें जैसे रिपोर्ट कलेक्ट करना होता है, हर लेवल पे जाके हमने रिपोर्ट कलेक्ट किया. और उसी टाइम में मुझे थोड़ा बहुत टच आया कि मैनेजर का क्या काम है, लाइक सीईओ का क्या काम है, ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, इनके एम्प्लॉयज को कैसे हैंडल करते हैं. ये सब चीजें हम लोग इंटर्नशिप या डिसर्टेशन में नहीं समझ पाते. इसके लिए हमको खुद उसमें घुसना होता है, लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो देखना होता है. उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई एक छोटी फर्म में ज्वाइन कर लूंगी और वहां पे चपरासी से लेके सीईओ तक का मैं हर कुछ काम सीख लूंगी. एंड दैट वाज मतलब वो जिद थी मेरी कि मुझे वो करना ही है. देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जो एड्सकोरो कंपनी में मैं थी. वहाँ पे एक बंदे ने मेरा काम देखा एंड ही वाज इन टच विथ मी फॉर लाइक मेनी मंथ्स. लाइक वो मतलब मैं प्रोजेक्ट के लिए उनसे बात कर रही थी एंड आई गॉट टू नो कि वो खुद का एक फर्म स्टार्ट कर रहा है. एंड यू वोंट बिलीव आई वाज अराउंड 23-24 when I was doing my internship or when I was completing my MBA, and that guy was just 21 years old. एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि एक 21-year-old लड़का कंपनी स्टार्ट कर रहा है. एंड दैट वाज अगेन ऑफ माय इंटरेस्ट. जैसे मुझे उस टाइम पे मुझे एक फैट था फेसबुक का. मतलब मैं ब्लॉग्स लिखती थी या कंटेंट राइटिंग करती थी, हर चीज मैं पोस्ट करती थी मेरे फेसबुक अकाउंट पे. और फेसबुक पेज तब एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था एंड उसमें भी उसने फेसबुक कॉमर्स का स्टार्ट करा था. तो व्हाट इज फेसबुक कॉमर्स, ये कैसे काम होता है. वो डिजिटल मार्केटिंग था जो कि हमको मतलब अभी अभी इंटरनेट इतना आगे आया है, अभी अभी ऐसा हुआ है कि आप हर चीज ऑनलाइन खरीदते हो. बट दैट वाज इन द ईयर ऑफ 2012. ये चीज बहुत नई थी उस टाइम पे. तो मेरा ऐसा था कि यार मुझे तो ये सीखना है. और ये नो मैटर, मतलब मुझे मैटर नहीं कर रहा था कि वो मुझे सैलरी कितना दे रहा है या दे भी रहा है या नहीं. इट जस्ट दैट आई वांटेड टू लर्न लर्न एंड लर्न. तो मैंने उनको ऐसे मेल किया कि सर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू. एंड मतलब मेरा ऐसे सैलरी एक्सपेक्टेशन भी अगर आप पूछोगे तो मेरा कुछ ये नहीं है. और कैसे रहता है, मैं आपको एक बहुत फ्रैंक चीज बता रही हूँ कि जब भी कभी आप सैलरी पे फोकस नहीं हो और काम पे फोकस ज्यादा हो, जब ये किसी कंपनी को पता चलता है वो पहले आपको उठा लेते हैं. सो मैंने वो ट्रिक खेला और मैंने बोला कि नहीं अब मुझे जाना है. एंड यू वोंट बिलीव, वो लड़का लाइक मॉर्निंग ही यूज्ड टू कम अराउंड 9:30-10. वो रात का 1 बजता था, 2 बजता था, मुझे 2 बजे मेल आता था, 3 बजे मेल आता था, ये काम है वो काम है. और मुझे कभी बोरिंग नहीं लगता था बिकॉज आई वाज सो मच मोटिवेटेड टुवर्ड्स माय गोल कि मुझे कुछ स्टॉप कर ही नहीं पा रहा था. एंड देन मतलब मुझे मतलब साइमल्टेनियसली मैं चीजें सीखती गई कि व्हाट इज फेसबुक पेज, हाउ डू यू क्रिएट इट,
अगर ये करना है तो इसको कैसे क्रिएट करना है। और उसमें जैसे अभी आप लोग अमेजोन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे जाके कोई एक प्रोडक्ट देखते हो, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, बाय नाउ करते हो, ऐड टू कार्ट करते हो, ये होता कैसे है? हाँ, हम लोग देखते हैं, हम लोग मतलब हमारा हमारा फर्म वैसा है ही नहीं, मतलब हमारी फील्ड वैसे है ही नहीं जिसपे हम लोग इस पे सोचे। लेकिन अगर आपको इन चीजों में आगे बिजनेस करना है, नाउ तो एवरी डे यू सी लाइक people, लोग, they are not going to the retail stores, but they are sitting in front of the system, they are taking the phones, they are just placing the order and they are getting their stuff done, right? So ये कैसे होता है? अगर मुझे ये बिजनेस करना है तो मुझे डे बाय डे जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है या जैसे जैसे ये बिजनेस का मॉडल चेंज हो रहा है वो मुझे पता रहना चाहिए, या मुझे वो आना चाहिए, ये मेरे दिमाग में था। तो मैंने इसके लिए मतलब मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे बैंक का स्लिप फिल करना है, या मतलब बैंक कैसे जाना है, वो पैसे कैसे होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट अगर होती है तो कैसे होता है। लाइक मैं यहाँ पे सिस्टम पे बैठती हूँ, 10,000 ट्रांसफर करो, किसी थर्ड बंदे को चला गया, बट ये होता कैसे है, इसका चैन कैसे होता है, दिस ऑल कम्स अंडर डिजिटल मार्केटिंग। तो वो मुझे सीखना था या मुझे पता कर लेना था। तो मैंने ये सारी चीजें 2 साल वहां पे सीखी इन द सेंस, मैंने उनको जाके कभी ऐसे रिक्वेस्ट नहीं किया कि मुझे सिखाओ, जस्ट दैट उन्होंने देखा कि आई एम वेरी मच मोटिवेटेड, आई एम लाइक टुवर्ड्स माय वर्क, और वो लोग मुझे ट्रेन करते गए, एंड दैट वाज द थिंग। लाइक मैं उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ये बहुत बड़ा टाइप है, लाइक ये बहुत बूम करने वाला है आगे आने वाले मार्केट में, और मुझे इसमें सोचना चाहिए। तो हम लोग कैसे करते थे कि मेरे अंडर कुछ पर्टिकुलर ब्रांड्स थे, जो कि अभी हमारा ट्रेनिंग वगैरह सब हो गया। पेमेंट गेटवेज क्या रहता है? पेमेंट गेटवेज इज नथिंग बट द ऑनलाइन बैंक। जैसे आप बैंक जाते हो, पैसा डालते हो, आपके इसमें सेव रहता है, या आप किसी को ट्रांसफर करते हो, वैसे ही पेमेंट गेटवेज है जो कि आपका ऑनलाइन बैंकिंग में हेल्प करता है। जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होता है उसमें वो होता है, उसमें टीडीआर कटता है। यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मैंने ये सब चीजें एमबीए में सीखी नहीं थी, मैंने वो वहां पे कंपनी में जाके सीखी। आप मुझे बताइए, अगर उसने मुझे 10,000 सैलरी दिया है और 10,000 सैलरी दे के वो मुझे ये सब सिखा रहे हैं, तो व्हाट इज द बिग थिंग, टू अर्न द मनी और टू गेन द नॉलेज? बिकॉज देर इज अ सर्टेन टाइम इन योर लाइफ, एक पर्टिकुलर स्पैन होता है, उसमें ही आप सीख सकते हो, उसमें ही लोग आपको ट्रेन करते हैं, उसमें ही आप कुछ अचीव कर सकते हो। पैसा आप लाइफ टाइम कमा सकते हो, नॉलेज आप लाइफ टाइम गेन नहीं कर सकते हो। जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता है उसमें आप पैसा मत देखिए, उसमें आप ये देखिए कि आपको लर्निंग कितना मिल रहा है। बिकॉज you should be a student always in your life. Every day new things are coming to the market. Every day the demands are different. Every day people and their choices are different. So you have to know the market. To know the market, you have to keep learning the things. That is the main thing that you have to pin it to your file. तो उस टाइम में मैंने ये सब सीखा, और जब हम लोगों ने पेजेस हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, तो कंसिडर कीजिए, सी टुडे आई एम नॉट गिविंग एनी प्रेजेंटेशन बिकॉज आई फील कि जब आप एक क्लासरूम में होते हो, जब आपको बोर्ड पे कुछ लिख के या समझा के बताया जाता है, इफ यू आर नॉट एबल टू पिक्चराइज द थिंग, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग. So only I'm not coming to you point to point. I want you to picturize my experience. Because जो भी चीजें मैं आपसे बात कर रही हूँ, that is like your day to day life का thing. So अगर मैं Facebook बोलूँ, आपके सामने पट बोल के वो पेज आना चाहिए आपके सामने है, ऐसे कि मैं कुछ ऑप्शंस बोलूँ, हाँ 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 वहाँ पे वो टैब रहता है. जब आप ये पिक्चराइज करना स्टार्ट करोगे, आपको बहुत अच्छे से वो अंडरस्टैंड होगा. सो नाउ आई एम टॉकिंग ऑन द फेसबुक पेज. कंसिडर कीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको क्या चाहिए? आपको लगता है कि सिर्फ पैसे से बिजनेस होता है? बिल्कुल भी नहीं. वहां पे सबसे ज्यादा मोटिवेशन काम करता है. आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि अभी मेरा एक प्रोडक्ट है. आप जब क्लोथिंग लाइन में भी बात करते हो, आपका एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप मुझे बताइए क्लोथिंग में कितना वैरायटीज है. लाइक ट्रेडिंग है, उसमें कस्टमाइज्ड क्लोथिंग है, डिजाइनर वेयर है, रिटेल का है, होलसेल का है. व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू? ऐसा नहीं है कि मैंने फैशन डिजाइनिंग की, मेरा डिजाइनिंग का है और मैं उसमें आगे जाऊंगी. नो, सी योर डिग्री एक्चुअली मैटर्स. समझिए, अगर मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, सब है, और मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं लेबर कहलाऊंगी. और अगर मेरे पास में सिर्फ डिग्री है और मेरे पास जीरो नॉलेज है, मैं क्या हूँ? मैं जीरो हूँ. लेबर लोग मुझसे अच्छे हैं. ये सब चीजें आती हैं. तो यू शुड लाइक बैलेंस बोथ द थिंग्स. Only the degree doesn't matter and only the experience also doesn't count on anything.
तो जब आपके पास में एक डिग्री है, आपके पास में उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है, आपने देखना है कि मार्केट का डिमांड क्या है। आज मेरा प्रोडक्ट है, मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट लाइन, मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे ये भी पता है, बट हाउ टू सेल, व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट नीड्स, और ये कैसे पुश होता है। तो ये सारी चीजें अगर आज आप देखोगे, बहुत ज्यादातर आप सेल देखते हो, जैसे ऑनलाइन का हर बार में आपको पॉपअप आता है कि मिंत्रा का ये सेल चल रहा है, अमेजोन का ये चल रहा है, वैसे ही रिटेल स्टोर्स भी आपको मैसेज करते रहते हैं। बट देन आप मुझे बताइए, जब मिंत्रा का पॉपअप आता है या अमेजोन का आता है, आप उसे चेक करते हो, या कोई रिटेल स्टोर जब आपको मैसेज करता है आप उसे चेक करते हो? आप डेफिनेटली मिंत्रा अमेजोन पे जाके चेक कर लेते हो। क्यों? बिकॉज दैट्स नाउ इन ट्रेंड। अभी हर चीज ऑनलाइन हो रही है, आपका फोकस कम हो जाता है रिटेल का, तो मूव इनटू ऑनलाइन के। तो जब मैं फेसबुक पे काम कर रही थी, मेरे सामने रोज हम लोग अराउंड 100 से 200 कस्टमर से हम लोग रोज बात करते थे, उनके नीड्स क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, हम उस पर उनसे डिस्कस करते थे। और मैंने एक फाइल बनाई हुई थी जिसमें उसका लिस्ट रहता था, what are the requirements, what are the needs, and how we can implement that into their businesses. तो उस टाइम पे हमने ये मतलब रिसर्च किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हम लोग बोलते हैं, उस फील्ड में हमने काम किया। और तब हमको ये समझ में आया कि अभी बहुत ज्यादा जो मास बोलते हैं ना, वो सब फेसबुक पे है। लाइक तब व्हाट्सएप भी उतना नहीं था, दूसरा कोई भी सोशल मीडिया, इवन इंस्टाग्राम भी उतना फास्ट नहीं था उस टाइम पे। दैट वाज ओनली द फेसबुक हु वाज लाइक ग्रास्पिंग द पीपल, मोर नंबर ऑफ पीपल। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया जाए। मतलब हमने इन द मेरे टीम ने सोचा, गाइस आई विल जस्ट रिक्वेस्ट I request everyone to please keep your mic on mute part, so only I can talk to you all. Yeah, thank you very much. So तब मैं हम लोगों ने मेरे सीईओ ने डिसीजन लिया कि हम लोग फेसबुक कॉमर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें पेमेंट गेटवे जो होता है वो फेसबुक पेज से इंटीग्रेट होगा एंड पीपल कैन एक्चुअली स्टार्ट सेलिंग थ्रू फेसबुक पेज। तो जब ये सब मेरे सामने चल रहा था, तो मैंने सोचा यार कि मेरे पास भी तो नॉलेज है, मेरे पास मतलब मेरा इतना बड़ा डिग्री है, आई हैव इंटरेस्ट इन दैट पार्ट। और तब मैंने सोचा कि चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस, विल जस्ट सी कि कैसे वर्कआउट होता है। तो मुझे कितना कैपिटल लगा? Zero capital, because to create a Facebook page you don't need a single penny. It's just that you should have your personal account on Facebook. With that you can create a page. तो मैंने उस दिन, जैसे मैंने कोल्हापुर में मेरा ग्रेजुएशन पूरा किया, वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, ये सब सोच के मैंने मेरे पेज का नाम, जो मेरे ब्रांड का नाम है अभी, आर्शवी बाई श्रद्धा ऐसे रख दिया। So आर्शवी इज द सेकेंड नेम फॉर गॉडेसेस महालक्ष्मी। तो मैंने जस्ट बोला कि ठीक है मैं इनसे स्टार्ट करती हूँ, उनका नाम से मैंने शुरू किया। तो सेम टाइम मेरा जॉब भी चल रहा था और मैंने जस्ट पेज ओपन किया। जो मेरे फ्रेंड्स जो मतलब जिनका शादी हो रहा था या घर में कुछ फंक्शंस हो रहे थे, उनका मैंने ऑर्डर लेके काम शुरू कर दिया। तो ये मैं काम कब करती थी? मुझे सैटरडे संडे छुट्टी रहता था काम से, तो मेरा मतलब बैंगलोर में थोड़ा कनेक्ट था अच्छा वाला, तो मैं उनके पास गई, उनको वो काम देना स्टार्ट किया और मुझे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और मैंने ये देखा कि इस मार्केट में जहाँ पे मैं अभी फिलहाल हूँ बैंगलोर में, यहाँ पे इन चीजों की डिमांड बहुत जबरदस्त है। आप ये चीज नोटिस कीजिए जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। पहला था सेल्फ रियलाइजेशन कि मुझे क्या करना है, सेकेंड था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, थर्ड था नीड। तो मैं आपको ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू पिक्चराइज द थिंग्स। तो जब मैंने ये देखा कि मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मेरा इंटरेस्ट उसमें है, तो मैंने धीरे धीरे से जॉब छोड़ दिया। इट वॉज अराउंड लाइक 23 months I guess I worked in e-commerce like Facebook commerce company, and then I left my job. तो मेरा ऐसा था कि अभी मुझे प्रोडक्ट पता है। अभी देखो, जब आप बोलते हो कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर, this is entrepreneurship, that is an enterprise. What exactly it is? Why it is different than a company? Why it is different than a business? क्यों नहीं मतलब हर बिजनेस को एंटरप्राइज बोले? क्यों नहीं हर कंपनी को आप एंटरप्राइज बोले? नो, सी देयर इज अ डिफरेंस। सो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने कोई प्रोडक्ट लेके बेचने का काम नहीं किया, वो हो जाता टिपिकली अ बिजनेस। मैंने क्या किया कि मैंने मेरा सेल्फ रियलाइजेशन मैंने किया कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज में अच्छी हूँ, मैं क्या बेच सकती हूँ, मेरा स्पेशलाइजेशन किस चीज में है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने मार्केट का नीड समझा।
उसके अकॉर्डिंगली मैंने कैपिटल मैनेजमेंट किया. So now when I say about capital management, I'll tell you one thing. Money is not everything to make your like business run. That is all the motivation. That is all about your subject knowledge. That is all about how you manage your raw materials, people, and the store, right? So when you talk about enterprise, there is a difference in between enterprise and a normal business. So जब आप enterprise बोलते हो, so there is a cycle. So first comes as an entrepreneurship. What is entrepreneurship? Entrepreneurship is the process in which you convert your idea into a business proposal, right? आपके दिमाग में एक idea आया, मैंने custom clothing में जाना है, and I guess I'm good into it. That is the entrepreneurship, idea converting into a business. Then I'm an entrepreneur. What is an entrepreneur? What does exactly he or she does? Entrepreneur is a person or a group of people who work on that idea to become a success business plan. You got my point? मैं एक पर्सन हूँ जो मेरे आइडिया को या मेरे बिजनेस का जो मेरे मतलब मुझ में आइडिया आया है उसको मैं प्रोसेस करके इनिशिएट करने वाली पर्सन हूँ. सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर. देन व्हाट इज द एंटरप्राइज? जो एंटरप्रेन्योरशिप था, जो एंटरप्रेन्योर है, ये सब कुछ ऑल टुगेदर पुट होता है एंटरप्राइज में. सो एंटरप्राइज इज नथिंग बट कमिंग अप विथ एन इनोवेटिव प्रोडक्ट and doing the business for making the profits. I'll repeat. Enterprise is a firm or a place that is altogether nothing but entrepreneurship, entrepreneur, they're coming together and making a business to get the profits. Every enterprise is a business, every enterprise is a company, but not every company or not every business is an enterprise. Because see, there are like multiple types of businesses. कोई बिजनेस होता है, जैसे आप MTR पकड़ लो, जो मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी ने ऐसे किसी ने उनका किया होगा, वो ऐसे ही ट्रेडिशनल मेथड से फॉलो हो रहा है, वो चल रहा है. कोई एक कंपनी है, उसका भी कंप्यूटर बना, वो बंदा भी कंप्यूटर बनाता है, सेम कंपनी मेरी भी है, मैं भी कंप्यूटर बनाती हूँ, बस वो HP है, मैं मतलब दूसरी कोई कंपनी है. तो ये कैसे हुई? ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ. बट व्हेन यू से द एंटरप्राइज, इट इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. तो इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? So let me talk to you on this now. तो जब मैंने बोला कि इसमें इनोवेशन चाहिए, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, इसमें सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, ये सब आता कहाँ से है? तो इसके लिए आपको होना चाहिए कि आपने मार्केट रिसर्च करना है बहुत अच्छे से. आप एज अ बिजनेस पर्सन नहीं, आप एज अ कस्टमर मार्केट में घूमना है. मैं अगर मार्केट में जाती हूँ, 10 कपड़े की दुकानें हैं और मैं हर दुकान में देखती हूँ यार बाहर वही चीज लगी पड़ी है, यहाँ पे भी वही लहंगा है, उधर भी वही लहंगा है, सब कलर अलग है. तो मैं उसमें क्या करती हूँ कि यार कुछ तो डिफरेंट चाहिए मुझे, मुझे वो पैटर्न ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ तो अलग, कुछ तो अलग. ये जो बात है, आपको इस चीज पे फोकस करना है, राइट? तो वो कुछ तो अलग क्या हो सकता है? तो वो जो चीज है वो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. मतलब आप पता करो और उस पर काम करो. अब मुझे पता चल गया कि वो प्रोडक्ट क्या है, मुझे वो मार्केट में लॉन्च करना है. आप भी देखिए, मैं आपको बताती हूँ, अभी रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, बारिश होने वाली है, और अभी मुझे इस सीजन के लिए कपड़े डिजाइन करने हैं या मार्केट में सेल करना है. मैं क्या करती हूँ फिर? मैं ये देखती हूँ कि अभी सीजन कौन सा है, इसमें किस टाइप का कपड़ा चाहिए होगा, वो कैसे उसका ड्यूरेबल होगा या नॉन ड्यूरेबल होगा या जस्ट यूज एंड थ्रो होगा. इस पे जब आप काम करते हो और वो जब प्रोडक्ट मार्केट में लाते हो, दैट कम्स अंडर एंटरप्राइज. तो जैसे मैंने रेनकोट बनाया या मैंने छाता बनाया जिसमें कुछ अलग फीचर्स हो, विच इज द नीड ऑफ द सोसाइटी करेंटली. अभी समझिए, आपने बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ है और वो मेरे नीड के ही नहीं है. व्हाट इज द मतलब व्हाट इज द पॉइंट गेटिंग दैट प्रोडक्ट टू मी, राइट? अभी मुझे बारिश आ रहा है तो मुझे ये नहीं है कि उसमें लाइट लग रहा है कि उसमें पंखा है कि ये मुझे मैटर नहीं करता है. मुझे क्या मैटर करता है, जब बारिश आ रही है तो ये जो कपड़ा है या फिर ये जो रेनकोट है या छाता है, ये मुझे बारिश से बचा पा रहा है या नहीं. तो ये जो होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो उस चीज में आपको देखना है कि व्हाट बेस्ट यू कैन गिव टू द पीपल. तो इसी तरीके से एक एक प्रोडक्ट आगे आता है, और जब उसको सक्सेस मिलता है, वो एंटरप्राइज से एक बड़ी कंपनी हो जाती है. इसमें पैसा कहाँ दिखा आपको? देयर इज नथिंग अबाउट मनी, या मनी मैटर्स, बट ये सब चीजें रह के अगर आप उसमें पैसा डाल रहे हो तब उसका मैटर होता है. So I hope you have got what exactly the enterprise means, right?
So apart from that, what is the need of an enterprise in the society? नीड क्या हो सकती है? बहुत सारी कंपनीज हैं, सभी कुछ है यार, एंटरप्राइज का क्या नीड है? तो देखिए, जैसे मैंने पहली वर्ड बोला कि आपको कि इनोवेशन, जब तक मार्केट में कुछ नया नहीं आएगा, लोग आपके पास नहीं आएंगे. सो ये नीड हुई सोसाइटी के लिए, ये नीड हुई उस मार्केट के लिए, ये नीड हुई उस नेशन के लिए. तो जब आप कुछ एक नया इनोवेट करते हो, समझिए अभी मैंने कुछ नया मतलब कुछ ऐसा फैब्रिक बनाया है या कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है जो नीश मार्केट है, जिसका अभी तक मार्केट में किसी ने लॉन्च नहीं किया. आपने कभी ये चीज गौर की है? जैसे आप नीश मार्केट में घुसते हो, वहां पे जाने के बाद इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है. एक्चुअली वो आपने कॉलेज में भी पढ़े होंगे, बट मुझे वो सब आज बात नहीं करना है आपसे. तो मैं एज अ कस्टमर, एज अ नॉर्मल पर्सन मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो जो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नया आया है, हर कोई उससे अट्रैक्ट हो जाता है. यार ये जैसे आपने देखी अलेक्सा, ठीक है, जब अमेजोन ने अलेक्सा मार्केट में लाया, लाइक पीपल वेर वेरी मच इंटू इट. अरे वो बात करता है, अरे उससे कुछ भी पूछो बताता है. तो जैसे ही वो आया, लोग उस पर कूद पड़े, वो मार्केट को मतलब बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला, हर कोई आज ले रहा है. और उसके जैसे अभी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स मार्केट में है जो वैसा प्रोडक्ट वो लोग सेल कर रहे हैं. So that is what I have said. The first time is lifeline of a nation. तो जैसे कोई इनोवेशन होता है, जैसे कोई एंटरप्राइज अपना प्रोडक्ट सामने रखता है और उसको अच्छा पिक मिलता है, उसके वजह से एक लाइफलाइन मिल जाती है कस्टमर्स को भी और लेबर्स को भी. सेकंड आता है प्रोवाइड द इनोवेशन, तो उसका भी मैंने आपसे बात की. थर्ड आता है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. जैसे मैंने आपको बोला कि अभी मार्केट में 10 प्रोडक्ट्स है, फिर मैंने 11th इंट्रोड्यूस किया एलेक्सा, जो कि पहले मार्केट में कभी था ही नहीं, वो आ गया. तो इससे क्या हुआ, जब मैं वो प्रोडक्ट बना रही थी, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मुझे और 5-6 लोग मिल गए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया. उनके नीचे काम करने वाले लोग, उनको हेल्पर बोल के आए, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया. जब मेरा मास प्रोडक्शन हो रहा है तो लेबर क्लास बढ़ गया. तो इससे क्या हुआ कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट मिल गया, राइट. उसके बाद आए इंक्रीज प्रॉफिट्स. डेफिनेटली जब आपका प्रोडक्ट्स, जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ता है या जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, डेफिनेटली उसके साथ में आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है. एज लॉन्ग एज देयर आर नो प्रॉफिट्स, देयर इज नो बिजनेस. डेफिनेटली दैट्स फॉर श्योर. उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. वही तो मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगा. और उसके साथ आता है सोशल बेनिफिट्स. अभी देखिए आप देखिए कि मतलब बहुत सारे सिटीज में एंड ऑल आजू बाजू में रिमोट एरियाज बहुत सारा होता है. तो बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, वो जाके सिटी में नहीं डालते कंपनी या फर्म, वो रिमोट एरियाज में डालते हैं, जहाँ पे उनको लैंड भी मिल जाए और लेबर भी मिल जाए. तो इसमें क्या हो गया कि आपको बिजनेस के लिए जगह मिल गई, आप वो बिजनेस उधर ऑपरेट कर रहे हो, आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रहा है, आपको मैन पावर इजीली अवेलेबल हो रहा है, और आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी इजीली दे पा रहे हो. तो इसमें सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स ऑल टुगेदर आ गए और सोसाइटी को बेनिफिट हो गया. सो दिस इज हाउ, लाइक सी, यू हैव स्टार्टेड विथ वन सिंगल आइडिया एंड इट इज बेनिफिटिंग टू द नेशन. So this is how the enterprise actually helps in building the business or in building the employment to the society. So अभी जो लॉकडाउन है या मतलब ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे लोगों के जॉब जा रहे हैं या कुछ, बट आई डोंट सी एनीवेयर कि लोगों के डिमांड्स कम हुए हैं या लोगों की नीड खत्म हो गई. जस्ट पीपल आर स्केर्ड, दे आर स्केर्ड लाइक हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा, पता नहीं कब कितने दिन तक काम नहीं रहेगा. बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने खाना छोड़ दिया है. दैट डजंट मीन कि उन्होंने मतलब टीवी देखना है, इंटरनेट यूज करना छोड़ दिया. जो आपका बेसिक है वो चल ही रहा है आज भी. सो सी, these are all the like emergencies, and emergencies are not the permanent things, that is for sure. Emergency is always for a very short time. और इसमें सरवाइव करना है तो इसके लिए आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद को मोटिवेट करना है, खुद को समझाना है कि यू आर गुड इनटू इट. मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मतलब आप फैशन डिजाइनिंग की हो तो आपको वही सब. जस्ट आस्क योरसेल्फ, जस्ट आस्क योरसेल्फ कि आप किन चीजों में अच्छे हो, आप क्या बेस्ट दे सकते हो और आप किस पे पेशेंस से काम कर सकते हो. बहुत लोगों का कैसे होता है कि दे आर वेरी गुड इन एवरीथिंग दे डू. कंसिडर कीजिए, मैं डिजाइनिंग में भी बहुत अच्छी हूँ, मैं ड्राफ्टिंग में भी अच्छी हूँ, मैं पैटर्न मेकिंग में भी अच्छी हूँ, मैं स्टिचिंग में भी अच्छी हूँ. बट आपको ये भी देखना है कि आप कौन सा काम करते वक्त बहुत पेशेंस से काम कर रहे हो. आर्ट इज ऑल अबाउट द पेशेंस. और आपके इसमें आप अगर इतने आर्टिस्टिक हो कि आपको सभी कुछ आता है, बट देन एट द एंड your patience matters, and with that only you can build the business, and that is what is going to give you the profits. So इसलिए आपने एक दिन खुद को देना है,
ऐसा नहीं है कि आपको जॉब ही करना है। जैसे मैंने मेरा एक्सपीरियंस बोली, 10,000 में मेरा गुजारा हो जाता था यार। मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि 10,000 मिल रहा है, मैं एमबीए की हूँ, मुझे तो 10,000 में क्या होगा, वो भी बैंगलोर जैसे सिटी में। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मेरे अंडर मतलब जो मेरे पास काम करने आती है कुछ लड़कियां, आई रियली फील सॉरी फॉर देम कि उनको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था कि वो सीख पाए। क्योंकि हम लोग लिटरली, मैं बता रही हूँ, मैं बुटीक्स में जाती थी, मैं पूछी थी, आई हैव गॉट अ वेरी गुड बैकग्राउंड, लाइक जैसे फैमिली बैकग्राउंड आप बोलते हो, मुझे रेफरेंस से कुछ भी मिल सकता था। बट आई वॉज द वन, मैंने सोचा था कि यार नहीं, जो भी होगा वो मेरा ओन होगा, मुझे सीखना है। अगर मैं रेफरेंस से जाऊंगी तो लोग मुझे ऐसे रखेंगे, ऐसे उठाएंगे, जाओ मैडम बोलेंगे, पैसा देंगे। मुझे वो चीज नहीं चाहिए था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत जगह पे ट्राई किया कि कोई बुटीक में मुझे मिले यार, किसी से मैं सीखूं, मुझे पैसे आप मत दीजिए यार, बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए कि मैं आपके साथ काम कर पाऊं। और मेरा ऐसा था, 9 घंटे का अगर मेरा जॉब था, तो मैं जब तक मेरा सीईओ ऑफिस में रहता था, मैं 12 बजते थे, 11:30 होते थे, बिकॉज आई वाज सो मच मोटिवेटेड। तो आप लोगों ने सीखने पे ध्यान देना है। ऐसे नहीं है कि मैडम ने मुझे क्या बोला, मैडम हमको इतना पगार कम दे रही है, हम लोग बैंगलोर में कैसे सर्वाइव करेंगे। अरे सोचो, तुम कोल्हापुर या अराउंड, मतलब जो भी, आई जस्ट डोंट वांट टू स्पेसिफिकली टेल द प्लेस नेम और एनीथिंग, बट हम इतने रिमोट एरिया से आके सिटी में सस्टेन करने का ट्राई कर रहे हैं। आपको इतना एक्सपोजर मिल रहा है, वहां पे आने के बाद यू आर सीइंग मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइंट्स, sorry, different kinds of people coming to you as clients. Same time you are seeing the labor, what are the problem with the laborers, how you can manage the labor, and the same time you are building the patience. सो आपको इतना सब कुछ सीखने मिल रहा है। आपने सुई धागा लेके एम्ब्रॉयडरी सीखना, आपने मशीन सीखना, आपने बुक नॉलेज लेने के लिए इतना सारा फीस वहां पे दिया हुआ है। आपको यहाँ पे रियल एक्सपोजर मिल रहा है और आपका सैलरी पे ध्यान है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब सैलरी मैटर नहीं करता, बहुत लोगों का ऐसा भी रहता है कि उनका पूरा घर उन पे चलते रहता है, एंड दे हैव टू थिंक ऑन दैट, दैट इज द एक्सेप्शनल केस। बट एट द सेम टाइम अगर आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है तो दैट इज वेरी टेम्पररी। आप ऐसा नहीं हो कि मतलब आप मेरे अंडर काम कर रहे हो या किसी के अंडर काम कर रहे हो, 10-15 हजार लेके जिंदगी भर ऐसे रहोगे, नहीं। आपको वो आपके नीड पूरे करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको लर्निंग मिल रहा है, आप सीख रहे हो, आप देख रहे हो कि यही वो मैडम थी जो हमारे लेवल पे कभी थी, वो आज यहाँ पे ऐसे आके कर रही है, तो वो भी उसी स्टेज पे गई हुई रहती है। सो मेरा मतलब एक ट्राई ये रहता है कि यार जो मैंने देखा है, जो मेरे पास लोग आ रहे हैं, उन्होंने उन फेजेस से नहीं जाना है, उनको डायरेक्ट स्पून फीडिंग हो रही है, उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, देन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्गर रन फॉर यू। तो मेरे अंडर ही नहीं, आप अगर किसी के अंडर भी काम कर रहे हो या जॉब के लिए देख रहे हो, seek for the opportunities and the learning, just not the salary. Okay, so just coming back to the point again, जो मैं आपको बता रही थी कि मतलब जैसे आप बुटीक्स में जाते हो या कपड़े की दुकान में जाते हो, इनोवेशन के लिए देखते हो, प्रोडक्ट के लिए देखते हो, तो ये सब कुछ एंटरप्राइज के अंडर आता है, हो गया। तो इसमें एंटरप्राइज का ये कैसे हुआ कि ओवरऑल लुक आपने देख लिया। तो नाउ व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। तो जब आप एंटरप्राइज के अंदर अंदर आते हो, सबसे पहले जब मैं क्लाइंट सोच के या मैं क्लाइंट हूँ ऐसे समझ के मैं कोई शॉप में जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, पहला इंप्रेशन मेरा क्या रहता है, हाउ इज द स्टोर, हाउ वेल इट इज मैनेज्ड, ये कैसे इन्होंने, इनका क्या अलग है जो दूसरों से। आप अभी देखिए, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, कोई भी मतलब जो भी पर्सनल बिजनेसेस है, जो छोटे छोटे बिजनेस है, उन लोगों का देखिए, किसी का भी सेटअप एक नॉर्मल सेटअप नहीं रहता है आजकल, समथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। तो प्रोडक्ट बाद में आप देखते हो, आप पहले क्या देखते हो, हाउ वेल इट इज मेंटेन, व्हाट इज डिफरेंट हियर। तो ये टेंडेंसी हो गया है आजकल कस्टमर्स लोगों का, तो वो लोग क्या करते हैं कि what is something different in this place, then they go to the product, what is something different in this product which is not there in the market but it is here, और तब आप उनको 2 पैसे ज्यादा भी चार्ज करो, वो लोग देके लेते हैं because that is different. You got my point? तो वो होता है डिटेलिंग। Detailing plays a very vital role in all the businesses that you do. So what is detailing? अभी उसका भी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिए। मे बी ये आपके घर में काम आ सकता है, बिजनेस में, प्रोफेशन में, कहीं भी। तो एक पेपर वाला था, और उसने मतलब एक एरिया था जहाँ पे सारे अपार्टमेंट्स वगैरह थे, बहुत सारे अपार्टमेंट्स थे, और उसका एक छोटा सा 2x2 का एक शॉप था, जिसमें आपको बिस्किट्स भी मिलेंगे, पॉपकॉर्न भी मिलेगा, टूथब्रश भी मिलेगा, चाय पत्ती भी, जैसे उसने ऐसे रखा हुआ था एक छोटा सा दुकान। और उसी के बाहर में एक
छोटा सा सेक्शन था जिसमें उसने स्पेशल एडिशन के न्यूज़पेपर्स रखे थे जो वीकली आता है। तो उसमें कैसे होता था, एक रवि भाई नाम का, रवि भाई एक इंसान है जो आप कंसिडर कर लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो रवि भाई क्या करते थे कि एवरी संडे जब भी वो वॉक को वगैरह जाते थे, वो पेपर लेने के लिए उस दुकान पे जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल एडिशन रहता था। तो उस दुकान में जाते थे, पेपर था 5 रुपए का। तो वो क्या करते थे, 5 रुपए का पेपर उठाते थे, तभी उनको बिस्किट दिखता था, अरे यार 2 बिस्किट के पैकेट देना। तभी चाय पत्ती दिखता था, बोलते थे चाय पत्ती देना। तो पेपर कितने का था, 5 रुपए का। उन्होंने सामान कितने का उठाया, 100 रुपए का। यू गॉट माई पॉइंट। तो ऐसे ही वो हर संडे वहां आते थे स्पेशल एडिशन का पेपर उठाने के लिए, साथ में उनको 100 रुपए का 150 रुपए का बिजनेस देके जाते थे। ऐसे रवि भाई के जैसे और बहुत से लोग वहां आते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही 2 महीने 3 महीने 4 महीने हुआ और सडनली रवि भाई एक दिन चलते आ रहे हैं और देखा रहे यार वो पेपर का सेक्शन नहीं है। तो वो ऐसे ही चले गए, ही डिडंट गो टू दैट शॉप। उन्होंने जस्ट देखा कि काम करते वक्त की उधर देखा, अरे यार वो तो सेक्शन नहीं है, अभी ठीक है, चला गया। फिर नेक्स्ट संडे वो वहां से जा रहे, उन्होंने फिर से देखा, अरे यार फिर से वो सेक्शन है, वो फिर से चले गए। 2-3 संडे ऐसे ही गया और फिर उन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, चलो दुकान वाले से बात कर ले। तो फिर वो दुकान वाले के पास गए, बोले भैया कैसे चल रहा है आपका बिजनेस, पता नहीं आजकल लोग कम दिख रहे, क्या हो रहा है आपके बिजनेस में। पता नहीं साहब, थोड़ा कम हो गया है बिजनेस, शायद लोग मतलब कहीं और कुछ दुकान खुल गई नहीं है। तो उन्होंने बोला भाई आपका जो स्पेशल एडिशन का यहाँ पे काउंटर था वो क्यों निकाल दिया, क्या हुआ। अरे भैया छोड़ो ना, वो क्या पेपर बेचने का काम है क्या मेरा, वो लड़का नहीं आ रहा है तो मैंने नहीं लगाया। बट आपने एक चीज पे गौर किया कि उसका, वो उसके शॉप का पार्ट था। That was one vital department which was giving him a very good business. People used to buy that 5 rupee ka paper, but they still used to purchase some 100 rupees ka material from him. So see, when you do a business or when you open up an enterprise, every single detailing matters. That has to be maintained in all aspects. मतलब जैसे ही मैं एंटर करती हूँ, कोई आपका स्टोर हो, बुटीक हो या कुछ भी हो, मेरी हर चीज मैटर करती है। जस्ट मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ले लो। उसके पास बिस्किट भी था ना, उसके पास चाय पत्ती भी था, उसके पास बिस्किट भी था। व्हाई ही वाज नॉट एबल टू सेल इट, बिकॉज उसमें का एक कंटेंट मिसिंग था। इट जस्ट दैट आपकी 5 उंगलियां है, एक उंगली मिसिंग है। तो पूरा जैसे हाथ एक यूनाइटेडली काम कर सकता है सारे फिंगर्स के साथ, विदाउट वन फिंगर कितना डिफिकल्ट होगा आपको, ऐसे ही सेम जब आप एंटरप्राइज में काम करते हो ये प्रॉब्लम आता है। सो यू हैव टू लुक इनटू द डिटेलिंग, विद डिटेलिंग कम्स द पैटर्न। सो व्हेन यू से अ पैटर्न, क्या दिमाग में आता है आपके, वाओ वो साड़ी का पैटर्न कितना मस्त है यार, वो लहंगे का पैटर्न कितना अच्छा है, उनका काम करने का पैटर्न कितना अच्छा है। व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। सी, हमारी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट उसको डीप में जाके नहीं समझते हैं। जैसे मैंने डिटेलिंग का आपको बताया, अभी मैं पैटर्न का भी बता रही हूँ। व्हाट एग्जैक्टली इज द पैटर्न। वो प्लीट का पैटर्न अच्छा दिख रहा था, ये फ्रिल वाला पैटर्न अच्छा नहीं दिख रहा है, वो प्लेन इसमें अच्छा, मतलब व्हाट इज इट। कभी आपने सोचा इन चीजों पे। पैटर्न इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग अप ओवर एंड ओवर अगेन एंड द रिजल्ट्स आर आल्सो सेम ऑल द टाइम। दैट इज द पैटर्न। सो जब मैं प्लीट बोलती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, प्लीट डालती हूँ। सो हैव यू सीन, जब हम लोग प्लीट्स डालते हैं हम पूछते हैं व्हाट इज द रेडी विड्थ, क्या विड्थ है उसका प्लीट का, तो इट इज 1 इंच रेडी प्लीट। लेकिन जब वो पैटर्न में मोल्ड होता है तो वो कैसे होता है, 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच, रेडी स्कर्ट रेडी साड़ी। सो डू यू सी इट, कैसे जा रहा है ये रिपीटेशन में जा रहा है, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है एंड द एंड रिजल्ट इज द सेम थिंग। सो मेक अ पैटर्न फॉर योर एंटरप्राइज। सो जब आपका, जैसे देखिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रही हूँ, साड़ी में कैसा रहता है कि फ्रिल वाली साड़ी, मैडम इसका पैटर्न देखिए, इसमें सारा फ्रिल है, मैडम इसका पैटर्न देखिए, इसमें सारे प्लीट्स है। सो वो फ्रिल और वो प्लीट उस साड़ी का पैटर्न बन गया है, जो उसको एक अलग आइडेंटिटी दे रहा है। यू गॉट माई पॉइंट। So detailing and pattern plays a very vital role while entering into the enterprise. So the first thing, if you will just recall all the things what I was talking to you till now, so the first thing was self realization कि मैं क्या कर सकती हूँ। Second thing comes as कि
मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितने रन के लिए चलेगा या मार्केट में उसका अभी नीड है क्या. देन कम्स द जनरेटिंग एंड इवोल्यूटिंग आइडियाज एंड द प्लानिंग. तुम जनरेट करो आइडियाज कि ये मेरा प्रोडक्ट है तो इसके लिए मैं क्या 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 कर सकती हूँ, इसको कहाँ प्लेस कर सकती हूँ. उसके अकॉर्डिंगली आप इवेल्युएशन करो कि आपको कितना मैन पावर चाहिए, कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है और इसका सेल कहाँ हो पाएगा. उसके बाद आता है रेजिंग द स्टार्टअप कैपिटल. तो अगर मेरा ये सब काम है तो मिनिमम कैपिटल क्या लगेगा, मेरे जेब में कितना है, अब मेरे पास 2000 है, 3000 है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ टू द मैक्स, वो आपको देखना है. उसके बाद आता है स्टार्टअप. अब आपका हो गया, आइडियाज हो गए, उसको आपने इनपुट दिया, उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर दिया, अभी शुरू कर दीजिए आपका. उसके बाद आता है ग्रोथ. जस्ट शुरू करके वहां नहीं बैठना है, आपको बार 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 मार्केट रिसर्च करना है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, उसके लिए डिस्प्ले मैनेजमेंट करना है, उसके लिए डिटेलिंग पे ध्यान देना है, उसके लिए आपका एक फिक्स पैटर्न रखना है. ऑटोमेटिकली पीपल विल गेट स्टार्ट कमिंग टू योर स्टोर और टू योर एंटरप्राइज. इसके बाद में आता है कि अभी सब कुछ है और मेरे पास लेबर्स भी है. नाउ कम्स द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस. हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है इन दो चीजों में. अभी जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे अंडर में मेरे वर्कर्स या लेबर्स काम करते हैं, यू वोंट बिलीव, जनरेशंस टू जनरेशंस दे वर्क फॉर वन सिंगल थिंग. जैसे वीवर्स होते हैं, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपका पूरा लाइफ चला जाएगा, वो फिनिशिंग आपका नहीं आ पाएगा. दैट इट डजंट मीन कि आप उतने स्किल्ड नहीं हो, जस्ट दैट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. वो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके बुढ़ा होने तक वो एक ही काम देखता और करते रहता है. सो ऑब्वियसली राइट. So you were been studying, you were like a student and you were just studying all the subjects. So you have the knowledge but you don't have the experience. So अब क्या करते हो कि आप देखते हो ये कैसा डालना है. So I know the basic कि ये टाका इधर का इधर गया तो ये खराब हो जाएगा, but they know the tricks. They know कि कम टाइम में कैसे ज्यादा काम निकालना है. So labor class is, see what exactly happens when you come to our field specially, कि हमारे फील्ड में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पीपल डिपेंडेंट काम है. लाइक आप अकेले कर ही नहीं सकते हो, आपको मैन पावर का बहुत ज्यादा जरूरत होता है. बट देन इवन इफ यू हैव लाइक मैन पावर इन योर हैंड, देयर शुड बी अ फिल्टर. तो फिल्टर आता कैसे है? सबसे पहले आपको अच्छा स्टाफ हायर करना होता है. व्हाट इज अच्छा नाउ? हर कोई अच्छा है, हर कोई अपना रेज्यूमे अच्छा ही बताएगा. मैं अगर कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं थोड़ी ही बोलूंगी सर मुझे वो काम आता है लेकिन मैं वो काम बहुत ज्यादा खराब करती हूँ. नो. So they'll always talk about their positive things. So what I will do, I have to filter. So at first, अभी आप सब लोग एक प्रोफेशनल कोर्स में हो, आप सब लोग आगे जाके I wish, I hope and I really, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि आप हर कोई जाओ और अपना अपना शुरू करो. Give the employment to the people, give employment to your society. तो जब आप ये सारी चीजें सोचते हो तो उसमें क्या आता है? सबसे पहले मेरा स्टाफ आता है. अभी मेरा प्रोडक्ट हो गया, अभी मेरा एंटरप्राइज हो गया रेडी, मुझे जो सेटअप चाहिए था वो सब कुछ रेडी है. आता अभी मुझे चाहिए मेरा स्टाफ. तो मैं स्टाफ या मेरा लेबर क्लास में कैसे, मतलब मैं कैसे फिल्टर करती हूँ? सबसे पहले देखिए what are the vibes coming into you. मेरे सामने अगर बैठ के कोई इंटरव्यू दे रहा है या कोई मैं किसी से बात कर रही हूँ, I shouldn't be always like seeing into his resume or her resume. भाई resume is 50% is fake always. You no matter to what like to firm you go, like IT में जाओ या किसी डिपार्टमेंट में जाओ, 50% चीजें फेक होती है उसमें. दैट इज जस्ट टू, मतलब उनको क्या बोलते हो आप, मस्का लगाने के लिए वो सारी चीजें रहती है. बट जैसे आप उस जगह के एंटरप्राइज के ओनर हो या यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो आपने एक चीज हमेशा गौर करनी है कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है. व्हेन ही एंटर्स, इज ही और शी नर्वस, is he or she happy or is he or she just faking the things. तो ये होता है पहला फिल्टर. तो उसमें कैसे होता है कि जिस किसी को सच्चे मन से करना है, जैसे मैंने आपको बोला अभी मैं थोड़ा ब्रैग कर रही हूँ खुद के लिए, बट मैं जब वहां पे गई मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में सैलरी है, नहीं अगर इसने मुझे अच्छा नहीं दिया तो मैं इसका कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी, ये जो चीजें रहती है ना, आपको बोलने की जरूरत नहीं रहती, आपके चेहरे से पता चल जाती है. आप बीच में ही पानी पी रहे हो, आपका हाथ शिवर हो रहा है, आप ऐसे बीच में सोच रहे हो, आप ऐसे कंटिन्यूअसली उनको स्टेयर कर रहे हो. ऐसे लोग ना लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास नहीं आए हुए रहते हैं. जो भी बंदा आपके साथ एक्चुअल में काम करना चाहता है, आपके कंपनी के ग्रोथ के साथ बढ़ना चाहता है, ऐसे लोग हमेशा खुल के बात करते हैं. दे विल ऑलवेज टेल यू देयर प्रोज एंड कॉन्स व्हेन दे वर्क विथ यू. वो होता है पहला फिल्टर. सेकंड फिल्टर,
जब आप किसी से बात करते हो या उनसे इंटरव्यू करते हो, कभी भी उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पूछने का एक ट्रेंड है। यूजुअली इन मतलब हमारे फर्म में वो चीजें ज्यादा मैटर नहीं करती है, जैसे व्हेन यू कम टू क्लोथिंग इंडस्ट्री, बिकॉज हमारा फर्म मोस्ट ऑफ द टाइम स्किल सेट पे डिपेंडेंट रहता है, उनका जो आर्ट स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंडेंट रहता है, उनकी जो पेशेंस लेवल है उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो ये सारी चीजें आप कैसे जज करोगे? इसके लिए आपको उनका एक्सपीरियंस देखना होता है। जैसे मैंने आपको बोली कि हमारा जो फील्ड है वो आर्ट से रिलेटेड है ना, आर्ट कम्स विद द जनरेशन। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका जनरेशन टू जनरेशन नहीं चल रहा है तो ही मतलब और शी वो नहीं कर सकते। बट व्हेन यू सी कि अगर आप उनको टास्क देके देखो कि आपको पता है कि योर प्रोडक्ट हैज द मेन फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, वो पार्ट उनको करने के लिए बोले कि हाउ परफेक्टली दे डू, प्लस हाउ विथ व्हाट पार्ट ऑफ इंटरेस्ट दे डू, प्लस कितने टाइम में वो लोग वो खत्म कर रहे हैं। मैं बहुत होशियार हूँ, मेरा स्किल सेट बहुत जबरदस्त है, एक ब्लाउज स्टिच करने के लिए मैं पूरा दिन ले रही हूँ, डू यू थिंक इट विल वर्क आउट फॉर मी? नो, बिकॉज देखिए जब भी कभी मैं बिजनेस सोचती हूँ मुझे कॉस्ट कटिंग सबसे पहले दिखता है। बिकॉज अगर मुझे प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं तो मुझे कॉस्ट कटिंग देखना पड़ेगा, मुझे टेक्नोलॉजीज पे वर्क करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कैसा होता है, मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों में मेरे पास अभी मास्टर का प्रोफाइल है, आप समझ लीजिए मुझे मास्टर को रखना है। बेस्ट मास्टर कौन होगा? जो अच्छा पैटर्न, बेस्ट पैटर्न बहुत कम टाइम में मेरे सामने रख के ले विथ अ स्माइलिंग फेस होगा ना। ऑटोमेटिकली मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा, भाई मेरा स्टाफ ऐसा है। विद दैट उसके नीचे जो लोग काम करते हैं वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं। अरे भाई मास्टर एक एक ब्लाउज एक ऐसे 15 मिनट में कट कर रहा है, आधा घंटे में कट कर रहा है, उससे क्या होता है टेलर पे प्रेशर आ जाता है। टेलर अपने अपना काम करता है, टेलर कर रहा है, टेलर का काम देख के फिर वो फिनिशिंग जो करता है लड़का जो हेमिंग करता है, हुक्स लगाता है, उसको भी डर लगता है, एक पीस हो रहा है दूसरा पीस आ रहा है मुझे, ऑटोमेटिकली वो स्पीड बढ़ते जाता है। तो आपने देखा एक बंदा आप सही लाओ आपके स्टाफ में, पूरा स्टाफ पे वो अफेक्ट होता है या उसका इफेक्ट होता है। तो वाइल फिल्टरिंग यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। तो ये हुआ, फिर उसके बाद में कि अगर वो इतना अच्छा है तो वो आपके साथ काम क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा मैं भी शायद मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छा होगा, मैं भी शायद मेरा सैलरीज मैं मतलब सैलरी में बहुत अच्छे से दे रही हूँ, या मे बी मेरा नेचर या मेरा वर्किंग कल्चर अच्छा हो, बट देन कोई मार्केट में और ऐसा नहीं है क्या जो जिसके पास ये सब हो? आपने ये क्वेश्चन इससे करना है इंस्टेड ऑफ आस्किंग ऑन हिज वीकनेस यूट्यूब, बिकॉज दोज 8 to 9 hours he should be dedicatedly working for your firm, for his firm. He should never think that it is her firm and for that I'm working and I should get this amount. तो जो ऐसे लोग रहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहते हैं। हो गया, अभी आपने उसको हायर कर लिया, नाउ ही इज द पार्ट ऑफ योर स्टाफ। नाउ जब वो बंदा उधर आता है, आप घर में भी देखिए हम लोग 4-5 लोग हैं, एक ही माँ के 2-3 बच्चे सेम नहीं होते, तो दूसरे घर के आए हुए लोग कैसे एक जैसे होंगे? तो हाउ यू विल ट्रेन देम, हाउ यू विल मेंटेन द पीस इन योर वर्किंग कल्चर? तो वहां पे एक सेट इंस्ट्रक्शन सबके लिए फॉलो करने होंगे। उसके लिए क्या जरूरी है मेरे लिए? आई आई एम नॉट मतलब मैंने कहीं पे ऐसे मार्क करके बोर्ड लगा के रखना है, इन बिजनेस इमोशंस के लिए जीरो जगह है। once you enter into my place or enter into the workplace, emotions गेट के बाहर छोड़ के आने हैं, whether it is a worker or the person who runs the business। तो इसमें क्या होता है कि रूल इज अ रूल, चाहे वो चपरासी हो या मेरा मास्टर हो, सबके लिए रूल सेम रहेगा, सबके लिए वर्किंग आवर्स सेम रहेंगे, तभी जाके वो मोटिवेशन बनता है। अभी मैं यूजुअली बता रही हूँ कि फर्म्स में कैसा होता है, जो बहुत टैलेंटेड बंदा रहता है जिसके वजह से कंपनी को एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी क्या करती है कि उस बंदे पे फोकस रखती है कि भाई इसको सस्टेन करना है, बाकी निकल जाने दो, बाकी जाएंगे उनके जगह किसी और को रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, इसको सस्टेन करो। उसमें कैसा होता है कि वो बंदा भले बहुत अच्छा हो भाई स्टार्टिंग में, आपके इस नेचर की वजह से उस बंदे का मतलब मोटिवेशन किसी और दुनिया में चला जाता है, वो आपको ग्रांटेड लेना स्टार्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपसे शुरू होती है। तो आपका एक सेट पर्सपेक्टिव है कि भाई नहीं, छुट्टी नहीं मतलब नहीं, अगर छुट्टी है सबको है, अगर छुट्टी नहीं है किसी को नहीं है। जब आप ये कल्चर स्टार्ट करते हो ना आपके फर्म में, हर कोई मोटिवेटेड रहता है। उसके बाद आता है सैलरी पार्ट। देखिए अभी मेरा स्टाफ है, मैंने इतना सारा फिल्टर्स लगा के उनको मतलब हायर की हूँ, उनको मैंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखी हूँ और दे आर फॉलोइंग इट। नाउ व्हाट इज माय ड्यूटी?
अभी उनके ऑब्वियसली अगर मैंने इतने सारे फिल्टर्स लगाए हैं, इतने सारे लोग मेरे साथ अगर काम कर रहे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा ड्यूटी क्या बनता है? समझिए अगर मेरा कंपनी मैंने स्टार्ट किया तब मेरा 1000-2000 का भी टर्नओवर नहीं था, दैट टाइम आई वाज गिविंग सैलरी फॉर माय मास्टर अराउंड 40-50,000 अ मंथ टू माय मास्टर। जस्ट कंसिडर कीजिए, एक साल का टाइम होने आया है, तब मेरा इनकम कुछ नहीं था और सडनली मेरी कंपनी 25-30 लाख से 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख कमा रही है, तभी भी मेरे मास्टर को सेम सैलरी दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल, you are all about your staff. Staff is not all about you. So you have to maintain your staff there. तो इसके लिए क्या होता है? टाइम टू टाइम उन लोगों को बोनस देना, टाइम टू टाइम प्रॉफिट शेयरिंग देना, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करना। जब उनके घर में इमरजेंसीज हो, उनके लाइफ में कुछ हो, उस टाइम पे आपका सपोर्ट ये मैंडेटरी है, not for them, for you, because that is how you will sustain with your business. Because consider कीजिए आप, मेरा जो मास्टर है या जो मेरा स्टाफ है, एम्ब्रॉयडरी पीपल जो काम करते हैं, हैंड का काम करते हैं या जो डाई करते हैं, जो कोई भी मेरा स्टाफ है, उसमें से एक बंदा भी नाराज रहेगा ना, जब वो देखेगा कि मैं मेरे किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन को बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से रख रही हूँ और इन लोगों का काम उतना अभी नहीं है मुझे, और मुझे इतनी जरूरत नहीं है इन लोगों की, चलो इनको फायर कर दो या उनको बोलो 2 महीने बाद आओ, नहीं, वो सबसे बड़ी गलती होती है। उस टाइम पे क्या होगा, मेरे जेब से पैसे जाएंगे, लेकिन मेरा उधर क्या प्लस पॉइंट होगा कि जो इतने दिन से मेरे साथ काम कर रहे थे, जो मेरे कंपनी के लिए, मेरे प्रोडक्ट के लिए दिन रात एक कर रहे थे, उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, उससे आपका जो इमेज है वो बिल्ड होगा एज ए लीडर। सो बिजनेस इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट मनी। मनी डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आई वर्क फॉर मनी, बट कितने दिन के लिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल? आपको क्या लगता है जब तक आप लोग स्टाफ मेंटेन नहीं करते हो और कंसिडर करो कि इसको निकाल लिया, उससे भी अच्छा स्टाफ मुझे डेफिनेटली मिल जाएगा यार, मतलब इतना ज्यादा लेबर क्लास है फिलहाल कि आपको अच्छे से अच्छा लेबर मिल जाएगा, लेकिन आप क्या करोगे? फिर से उतना ही टाइम उस बंदे पे डालोगे, फिर से उसको वैसे ही ट्रेन करोगे, फिर से वही बंदा अलग अपॉर्चुनिटी देखेगा, क्योंकि उसको पता है आपने पैसे का मामला था इसलिए पहला वाला स्टाफ निकाल दिया, इसको रख दिया। लॉस किसका है? कितना मतलब उस टाइम पे अगर आप उनको 500, 600, 1000, 2000 का अगर हेल्प करते तो आपका स्टाफ मेंटेन हो जाता था, वो सस्टेन होते थे, वो और लॉयल्टी से आपके साथ काम कर सकते थे, बट नहीं, आपने उनको फायर कर दिया। So now the new staff which is coming in, they know what your business culture is. So to maintain your current staff, to know their pros and cons is the main duty of that entrepreneur. That is how वो business idea दूसरे businesses से अलग होता है। See with my case I'll tell you. जब मैंने एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट किया, I hardly had some 3 to 4 workers with me. That was in the year of 2015. Now it is 2020, and you won't believe, like now we are around 15 to 16 people. Those are like fixed, like full-time workers are with me. Few people they work from home for me. But जो पहले के 4-5 वर्कर थे मेरे साथ, those people are still working with me. Still working with me. एंड उनके साथ में दूसरे वर्कर्स का बिहेवियर जो है या मेरा उनके साथ का जो बिहेवियर है, ये सब देख के ही हमारा वर्किंग कल्चर मैनेज होता है। दिस इज वेरी ट्रेडिशनल मेथड। आपको इसके लिए अलग मैनेजर रख के मैनेज करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू लुक इनटू द रूट्स कि भाई इनका नीड क्या है, ये लोग कब बाहर जा सकते हैं, ये लोग मुझे छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ सकते हैं, या कोई कंपनी के पास क्यों भाग सकते हैं। एक बात उसमें आप ध्यान दीजिए कि बंदा जो आपके पास 2 ही लोग आएंगे, एक जिसको एक्चुअल में नीड है या जिसको सीखना, और एक बंदा जो मजबूर है, उसको कहीं और पे काम नहीं मिल रहा है। वो आप काम दे रहे हो, मतलब आप उसका वो काम करता है काजू बादाम का और उसको आप फेंक रहे हो मूंगफली, आपको लगता है क्या वो आपके पास टिकेगा? सो as an entrepreneur you have to look into the product as well as into the roots of the laborers. What are their basic needs, what are their actual expectations from your firm, just the money or anything else, उनका एक security रहता है। These all aspects you have to look into it, then only a business will run. With that, अगर आपका staff खुश है, अगर उनके चेहरे पे खुशी है, even the customers will be happy. कंसिडर कीजिए, मैं मेरे स्टाफ को बहुत स्ट्रिक्ट रखती हूँ, टाइम पे क्यों नहीं आए, 5 मिनट लेट हुआ, अक्ल नहीं है क्या? वो स्टाफ आपका, आप मैडम हो, आप बॉस हो, मतलब आपके सामने अच्छे से ही रहेगा, लेकिन जब आप वहां पे नहीं रहोगे और कोई कस्टमर आएगा, वो चीज वो दिमाग में रख के बदला ले लेगा वो आपसे, वहां पे आपके कस्टमर के सामने बोलेगा क्या है वो हमारी मैडम आती नहीं टाइम पे, क्या रहे, कभी रहती है कभी नहीं रहती। कोई दूसरा दुकान देख लो ना मैडम, हमारे ही लोग रहते हैं वो,
कोई बाजू वाला आके उनको ये सब नहीं बताता है. So even before taking a step to start with an enterprise, you have to think on all these aspects. And that was the reason I personally came up with this topic. Because see, job करना ये वो सब हर कंपनी में ट्रेनिंग दिया जाता है. But when you start with a business, there is no as such training given. There is no as such research and development done. So on that you have to work. You have to check on the place, like to where, with whom, and why, and when, और कैसे, और इससे आउटपुट कैसे आएगा. That is like all your call. You have to take on that. See, there are many things I can still talk to you. मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. It's just that I wanted to give you a rough idea कि अभी सिचुएशन कैसा है, आपका एजुकेशन कैसा है, आपके लोग कैसे हैं, इन सब चीजों पे आपको सोचना पड़ेगा. और सबसे मेन और जरूरी बात जो आपको मतलब कहीं पे सेव करके लिख लीजिए, रख लीजिए या कहीं लिख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जो भी आप काम करवा रहे हो या जो आपका स्टाफ है जो आपके लिए काम कर रहा है, उसका हर काम का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है. जैसे कि समझिए अभी मेरे पास एम्ब्रॉयडरी के लोग हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है भाई, फिनिशिंग नंबर 1 का है. लेकिन वो पर्टिकुलर मोटिव करने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए, वो पर्टिकुलर काम खत्म करने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, इस चीज का नॉलेज अगर आपको नहीं होगा, उसका स्टिच कैसा होना चाहिए, उसका नीचे का स्टिच कैसा होना चाहिए, उसका फाइनल फिनिश कैसा दिखना चाहिए, जब तक ये आपको पता नहीं होगा आप एंड प्रोडक्ट अच्छा नहीं पाएंगे. बिकॉज as long as your workers, your laborers, they know that you have the knowledge, वो डरे हुए रहते हैं, उनपे एक स्ट्रेस लेवल रहता है, they'll do your work. If they know that you have zero knowledge into it, आप जीरो में हो उसमें. Because वो एक मोटिव है, अगर मुझे नॉलेज है मैं बोलूंगी भाई ये काम 4 घंटे में होना है, बिकॉज मुझे पता है वो 4 घंटे में होगा. अगर मुझे नॉलेज ही नहीं है मैं उनको बोलूं भैया ये काम 4 घंटे में होना है, वो आपको क्या बोलेंगे, क्या बात कर रहे हो मैडम, इतना भारी मोटिव है, आपको लग रहा है 4 घंटे में होगा, देखिए स्टिच ऐसे जाता है वैसे जाता है, वो आपको फूल बनाएंगे. एक नॉर्मल एग्जांपल लीजिए आप क्लासरूम का. जब हम लोग क्लासरूम में होते हैं क्या करते हैं, जब हमारा स्टाफ आजू बाजू रहता है या मैडम या सर आजू बाजू रहते हैं, हमारा सिचुएशन देखिए कैसे रहता है, वी आर लाइक फोकस. जैसे ही मैम हमारे पास में आ रहे हैं लाइक ओह या दैट इज ट्रू, दैट इज राइट. whenever we write the exam, when our staff is around, आए हम लोग लिखते रहते हैं. What is that? That is the negative motivation, which is actually important. मतलब वो भी equally important है. तो इसीलिए आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए, आपके नॉलेज में ऐड ऑन कीजिए, जो आपके सामने काम हो रहा है उसकी जानकारी रखिए, कितने टाइम में होना है ये समझ लीजिए, तभी जाके आप आपके स्टाफ को कंट्रोल कर पाएंगे. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर ओन बिजनेस, टू मैनेज योर ओन स्टाफ, और उसके वजह से ही आपका फिर प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा, आपका कॉस्ट कटिंग नहीं होगा. सी इट इज ऑल अबाउट यू. How you manage your business, how you put up the idea, how you have the knowledge about the product, and in like cost cutting कैसे करके profit margin कैसे बढ़ाते हो. With that all the enterprise runs, even the staff gets managed. So it is all up to you. See, मैंने जैसे बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, ये मतलब बहुत vast field है. These things whatever I'm talking to you, these are the मेन थिंग्स इन दिस बिजनेस. वो जो बोलते हैं ना क्रिटिकल थिंग्स है ना, वैसी है. इसको छोड़ के डे टू डे लाइफ की भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मनी मैनेजमेंट है, डिस्प्ले मैनेजमेंट है, विजुअल मर्चेंटाइजिंग है, ये सभी कुछ आप बुक में पढ़ के कर सकते हो. बट खुद को डेवलप करना या खुद आइडिया प्रपोजल सामने रखना, उसको इम्प्लीमेंट करके बिजनेस में ग्रोथ लाना, इट इज ऑल अप टू यू. एंड देयर आर टू थिंग्स, यू शुड बी ऑलवेज मोटिवेटेड. तुम्हारी घर की चीजें, तुम्हारे अदर पर्सनल मैटर्स जब आप बिजनेस में या काम की जगह पे लेके आते हो, ट्रस्ट मी आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. यू हैव टू बी लाइक ऑलवेज, वंस यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, यू आर ऑल ऑफ योर बिजनेस, यू आर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट, यू आर ऑल ऑफ योर स्टाफ. यू हैव टू थिंक अबाउट इट. गोली मार, कोई फोन आ रहा है, कोई पर्सनल कॉल्स आ रहे हैं, कोई डांट रहा है, चिल्ला रहा है, वॉट एवर, बट इट शुडंट इम्पैक्ट योर बिजनेस. Because end of the day you are doing everything for your own work, right? आपने इतना सब कुछ मेहनत किया है, किसके लिए किया है? उस जगह पे आप जब बैठते हो, आप में जब पेशेंस नहीं है, आप देखते हो कि यार अभी बिजनेस नहीं हो रहा है, स्पेशली अभी जैसे लॉकडाउन है यार, बिजनेस नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे. इफ यू विल कम टू कमर्शियल स्ट्रीट नाउ, 1000+ स्टोर्स आर शट. मतलब
इतने सालों से generations by generations they were doing the business, and because of this 2 months का emergency they have just shut the business. Are you seeing it? This is all about the motivation. I know कि money plays a vital role in business, but आपने इतने छोटे टर्म के लिए बिजनेस सोचा था, आपने इतने छोटे टाइम के लिए अपना मोटिवेशन गंवा दिया. आई डोंट थिंक इट मैटर्स, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. दिस विल आल्सो पास. ऐसा नहीं है, दिस इज इमरजेंसी. इमरजेंसी इज ऑलवेज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. दिस इज नॉट परमानेंट. दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. And trust me, whenever and whatever you learn in your life, no matter from whom, it will give you the benefit. It will definitely give you the benefit. आज नहीं देगा लेकिन कल देगा, that is for sure. So keep talking to, see, and always make a point in your life कि आपको जब भी कभी भी कोई confusion हो, जब भी कभी आपको लगा कि आप demotivated हो रहे हो या आपके पास में business ideas नहीं है, just read. Because see, तुम्हारा जो स्टाफ है, तुम्हारा जो फ्रेंड्स है, वो भी लोग है, उनका भी लाइफ है. दे हैव पर्सनल लाइफ, दे हैव प्रोफेशनल लाइफ, उनके टेंशन है, उनकी खुशियां हैं. When you say a human being, वो human being इन सारी चीजों में अटका हुआ रहता है. But books, they have the knowledge. You go read them. They will never say no to you. No matter what you feel, you have to read. तुमको अगर लग रहा है, अगर आप डिमोटिवेटेड हो रहे हो, कुछ तो मोटिवेशनल पढ़ो. आपको लग रहा है कहीं आइडियाज कम पड़ रही है, यूट्यूब पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे, कहीं भी जाओ यार. लाइक दिस वर्ल्ड इज अ ओपन बुक फॉर यू. You ask anything to anybody, they will definitely answer to you. Just not the human being, but anything you go ask, it will answer you. So इसीलिए कभी demotivated नहीं होना है, वो एक आप पक्का मार्क कर लो. Even if you consider कि अगले 1-2 साल भी अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, जिंदगी इतनी नहीं है, you have the knowledge. छोटे से छोटा स्टार्ट करो यार. कितने सारे बिजनेसमैन है, मैं आपको बताऊं, नाम लेके भी बताऊं तो 10, 12, 15 रुपए, 20 रुपए से स्टार्ट किया है. आपको लगता है क्या जब उनके जेब में 20 रुपए था, वो लोग सोच भी पाते कि वो लोग इतना ऊपर जा पाएंगे? बाबा रामदेव ने जब पतंजलि स्टार्ट किया, इट वाज अ स्मॉल एंटरप्राइज, जस्ट द स्मॉल एंटरप्राइज. आज वो 12,000 करोड़ का कंपनी है. So this is all about all the aspects, whatever I have just spoken to you. It is all about that. It is all together. It is the same. So never think nothing is short, like कुछ भी छोटा या कम ऐसा नहीं है. It is all about your idea. It is all about your motivation. It is all about the product that you are thinking on. और समझिए कोई प्रोडक्ट एक तो आपका फेल भी हो गया, doesn't matter क्या गया आपका, प्लस गया तो भी आपको लर्निंग मिला ना. Always think on that part. You have to be a student always. See, when you were student, आपने कभी पैसे के बारे में सोचा था क्या? मैं ये पढ़ूंगी तो मुझे इसका कितना पैसा मिलेगा, मैंने ये टॉपिक पढ़ा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा? नो. तब आपने क्या सोचा? ये सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ माय इंटरेस्ट. मैं ये पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है. आप ऐसे ही काम करो ना. जब आप काम उसी तरीके से करते हो, पैसा तो आते रहता है, बट आपका इंटरेस्ट भी बढ़ते रहता है उन चीजों में. So that is what I can talk to you for today, I feel. और इन चीजों में बहुत टर्मिनोलॉजी से मैं नहीं गई हूँ, बिकॉज मुझे आपसे ओपन अप होके बात करना था, मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे आपसे शेयर करने थे. एंड आई होप कि मैंने बहुत फ्रेंडली, इजीली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपसे बात की हूँ. एंड मैं कोई चीजों में मिस आउट कर गई हूँ या कुछ चीजें रह भी गई है, तो होपफुली फिर से हम लोग मिलेंगे. एंड आई एम ओपन टू यू ऑल. जैसे मैंने आपको बोला, इवन आई एम लाइक एन ओपन बुक टू यू. मतलब जब भी आपको लगे कि मैं कुछ चीजों में आपकी हेल्प कर सकती हूँ या आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम. See, I am also not a very big person or nothing. I just since 4-5 years I'm doing my work. So whatever I've gone through, whatever experiences I have got, I just wanted to share that thing with you all, and especially on the enterprise and on the labor management. So this was just a very short call on that part. Still, if you need any kind of help, please do let me know. And I just I just give a full stop on this topic today. And definitely I'll ask people like who all are listening to me, if they have anything or if they want to share anything, if they want to ask anything, you all are welcome. We'll just start with question and answer session, I feel. I'll just pass on this call to Jyoti ma'am for now. Thank you, Shraddha. Wonderful session and in a very simple language. Hope so that is the feedback from other participants also. Because after listening to your lecture, I am sure at least around 20% of these participants will at least dream to start their own enterprise. Even I hope so, ma'am. Yeah. So now we come to the question answer session. So anybody interested can put their question on the chat box,
or you can raise your hand so that we can ask the, I can unmute you to ask the questions. Sure. Thank you, Swalia. Thank you, Snehal. Dhanashri Raut. I think she's interested in asking a question. You can unmute your mic and you can ask. And also start with your video. Sure. I can see your hand raised, so I just asked for you. Anybody else? Thank you, Sakshi. Thank you, Shamal. Okay, Reenal, we have a question from Reenal. Yeah. You can unmute your mic, Reenal. Yes. Ah. Hello, ma'am. Good afternoon. Hi, Reenal. Ma'am, my question is like. Ma'am, I'm sorry, Reenal, you're not audible at all. Hello. No, I can't hear you well. You're not audible, just me. Louder. Am I audible? Yeah, now you're audible. Yeah. Ma'am, sometimes we see like working with all these aspects. The basic thing is that we should go how we communicate with our labels. Right. Like if I'm having a lot of knowledge and I know everything about my company, about my firm, and everything, but the laborers or the job workers which we are working with, like you said, from generation to generation. So we are new, and they are old to our company. So sometimes it happens like if I'll tell my experience. I'm working with a firm and I'm having new freshers with me. So sometimes when we are posting to a new post, or we are getting we are going further, we have to hand over our work to someone. Like, okay, so like that time it happens like they are not managing the labor how we and our company was managing. So that time problem is that it happens like, मैम आप प्लीज आप वो काम कर दीजिए, आप हमें थोड़ा समझा दीजिए, या वो मैडम को नहीं जम रहा है. Like it happens because they are working with us from generation to generation. Okay, so they know everything. Like we are working with our job workers, हमारे job workers है, तो उनको पता होता है कि हमारे कंपनी कौन से एस्पेक्ट पे चलती है, हमारे कंपनी में क्या चल रहा है. लेकिन जब हम के साथ जुड़ जाते हैं तो पहले हमको उनको स्टडी करना पड़ता है. कंपनी तो हम स्टडी करते ही है, लेकिन जॉब वर्कर, हमारे हैंडवर्क, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, इन लोगों को हमको पहले उनके ऊपर हमको स्टडी करनी चाहिए. तो उसके ऊपर हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर आता है कि हम लोग. रीनल, आई विल टेल यू वन थिंग. तो मैंने तुमको वही बात पहले बताई जब थोड़ी देर पहले मैं बात कर रही थी कि जब आप स्टाफ हायर करते हो, नो मैटर, मतलब चाहे वो लेबर हो, चपरासी हो, कोई हो आपका, तो आपके कंपनी का एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है. उनका स्टैंडर्ड में आप क्या क्या लेते हो कि वर्किंग आवर्स है, या जो काम करने का स्ट्रक्चर है, या जो एक मेथड जो तुम ट्रेडिशनल मेथड बता रही हो. व्हेन यू से अ ट्रेडिशनल मेथड, दैट इज नथिंग बट द रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्क अगेन एंड अगेन. यू गॉट माय पॉइंट. We say this is our tradition. So what is the tradition? जो पहले हो रहा था वो अभी सेम हम लोग फॉलो कर रहे हैं. So to convey that message to the workers, you have to be knowledgeable. So now you should know about your tradition at first. कि भाई हमारे यहाँ पे काम कैसे होता है. तो समझो कोई एक एम्ब्रॉयडरी है, उसको अगर इतने घंटे में पूरा करना है, अगर वो जॉब वर्क है, तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे काम होना है. So you are telling me कि जो तुम्हारा वर्कर रहता है वो तुमको बोलता है कि मैम आप एक्सप्लेन करो, ये मैडम नहीं समझ पा रही है या हम नहीं समझा पा रहे, राइट? तो वो कब आता है? जब आपका खुद का नॉलेज अप टू द मार्क ना हो. See, now I'll tell you one thing. As long as I don't know about a particular process or a product or the job, I won't be able to explain that to others. So even before you explaining to people, you have to train yourself.
You have to know how your staff is, because see, you are an educated person, right? So जो तुम्हारे अंडर काम करता है, that person is not as educated as you are. Rinal, I'm not able to see you actually. Yeah. Ma'am, there's something has happened. Rinal, can you hear me now? Yeah, I can see you. You can hear. Yeah. So now see, what I'm telling you now is, you are more educated than your labor class, right? So their understanding and your understanding, there will be a big difference in that. So you have to match their understanding. They will not come to your level to understand. You have to go to their level. Like कि उनको कौन से language में या किस तरीके से बताया जाए तो वो समझेंगे, right? So consider मैं तुम्हारे अंडर काम करती हूँ और तुम्हें मुझे explain करना है. So even before explaining the subject, you have to know about my roots. कि मुझे कौन से लैंग्वेज में समझ में आता है, मेरा काम करने का तरीका क्या है. अगर अभी तुम हो या मैं हूँ और मैम है, ठीक है, तो मैम एक ही चीज हम दोनों को पढ़ाती है. मुझे ज्यादा मार्क्स आते हैं, तुम्हें कम मार्क्स आते हैं, या तुम्हें कम मार्क्स आते हैं, मुझे ज्यादा आता है. ये क्यों होता है ऐसे? दैट इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. हाउ ज्योति मैम एक्सप्लेन इट टू यू और टू मी, it is the same way, but how you grasp it is different. So you have to work on that process, then only the outcome will be the same. Okay, thank you, Shraddha. We have another question. Yeah. It's from Vaishnavi Kuke. She wants to know if you want to start an enterprise, any legal aspect. Ma'am, I'm getting the echo of your voice. Yeah, I know, same with me. Ma'am, can you please ask them to mute the calls because I'm not able to hear it clearly. Neha Thora, please mute your call. Now? Yeah, tell me, ma'am. Yeah, there's one question. To start an enterprise, any legal aspects are important? Yeah, for all the businesses that you start, there are certain registration processes that you have to go through with. Okay. That you can check with the CAs, yeah. There's anybody else who is interested in asking a question? I could see Neha Sonone. Good noon, ma'am. Good afternoon, Neha. So, ma'am, like if we are starting a startup plan, okay, so we are done with registration and all, and we have thought of the product we want to sell, okay. So we have a idea of our product, and we do have the manufacturing unit. Like I know how I'm gonna manufacture my product or make it available for people, but then we need to have some certain platform to sell it, right? And when we are new to the market, it's not easy to get that platform. So what do you think that how I'm supposed to gain that platform? Like people See, need Neha, to... that's what I've told you in the beginning when I was talking. What I've told you, you had to see on all the W's, when, where, why, and to whom, right? So when is the first thing कि आपको वो product कब launch करना है या कब मतलब market में लाना है? Where is the place कि कौन से place में देना है? तो अभी आप मुझे आपका product बताइए तो मैं उसको example रख के आपको explain कर लेती हूँ. Ma'am, actually, I'm not like I have a paper plan. Please, excuse me, can you on your video so that we can see you, Neha Sonone? Yeah. Can you see me? Yeah. So I have a paper plan, but I don't have like I'm not able to implement it. Like I have some certain problems that are coming in between that I cannot implement my paper plan on the. So have you worked on those problems, Neha? Like, did you ever think on like why these problems are coming in between, and what Actually, are the problems? I guess I'm not getting the proper guidance for that. So I'm trying to figure them I'll tell you out. one more thing, Neha. Before even like, see, now you have developed the product and now you're seeing for the problems and the opportunities and where to sell. So I'll suggest you now, since you have made the products, you have to do the research and development. That is another part. But even before launching the product or making the product, you had to think on all these aspects. So now consider, yeah. I have an idea that how I'm gonna make my product, how I'm gonna like what that gonna be actually, but I don't have a platform that where I'm gonna launch it. That's what I'm telling you, Neha. Okay, so see, when you were making that product,
you like in prior only you had to think on this part कि अगर मैं ये product बना रही हूँ तो ये मैं कहाँ sell करूँगी. So now when you have made the product, when you have manufactured the product, now you can't sit and think because first of all you are lacking the time now कि तुम्हारा मतलब product ready और तुम sell नहीं कर पा रहे हो. And second thing, consider करो कि आपका जो product है उसको अभी market में demand नहीं है, या consider करो कि आपको जो platform नहीं मिल रहा, तो वो product का भी एक life cycle होता है. You got my point? जैसे मैंने रेनकोट का एग्जांपल दिया, ये मैंने रेनकोट बनाया है अभी, लेकिन मैं रेनकोट बेचूं कहाँ पे अगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है और रेनी सीजन खत्म हो गया. There is no point selling the raincoat in winter or in summer time, right? So even before you make the product, you have to think on all these aspects. कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रही हूँ तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको सेल करने का प्रोसेस क्या होगा, इसको मैं कहाँ सेल कर पाऊंगी और उसके लिए क्या चैनल्स होंगे. So now once you have made the product, you have to see the similar products which people are selling online or in the market. You have to like adopt those traditions to sell your product. And ma'am, nowadays, since I'm new to the market, what are the most preferable platforms, like virtual one or like going to shops to shop? Which one is preferable? No. See, going to shop is not a theme right now because now people are focusing more on online platforms, as I've said you before also. So now you can see if you'll go to Myntra, Amazon or anything, people are nowadays buying most of the things online. First, as like it is more of the convenience. Second, you are getting like best price thing there. Like consider if I go to the store, the saree what I'm getting for 10,000, 15,000, the same kind, the replica, I'm getting it for 2,000-3,000 on the online platforms. So as a customer, I'm thinking on that part. Okay, if I'll get that thing online and that is directly coming to my home, why should I go to the store and buy these products? So if you're looking forward to sell your product, because for that you don't need a big investment or the capital. So if you'll ask my suggestion on that, definitely I'll ask you to go with the online platforms for now. See the response, give the trial products to the people. So now whatever product you have with you, forget about income, like how money you will get it on that. Just see the trials on that. See how people are responding to your product. So consider you have given me a sample product for the trial, and if I really like it, I will only pay you for the next product to buy it from you. You got my point? And I'll use it and I'll tell my 10 more friends and the family members again. You see, this I have got it for this amount, and this is really amazing. So there is no need for you to do the advertisement in the initial stage. So first is the sampling. You do the sampling of your product, give it to your friends and family, take the feedback. See, the feedback matters a lot when you are like new into the market. So give the product as a sample, take the feedback and check on like what innovations you can do into it or what people are giving the comments on the same. So consider आपने कोई एक ड्रेस बनाया है, so आपने वो सैंपल के लिए उनको दिया, वो क्या बोलेंगे कि यार फिट बहुत अच्छा है, डिजाइन भी बहुत अच्छा है, this is going to be your feedback. But if they'll tell you fit अच्छा है लेकिन पता नहीं थोड़ा टाइट सा लग रहा है या कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, this is the comment. So you have to work on both the things, feedback and on the comment. So this is how you will start learning and this is how the product will get developed, and then only there will be a growth to your business. And thank you, ma'am. Thank you. We have more questions from other participants. Ma'am, your voice is equal. Hello. Am I audible? Hello. Yeah, ma'am, you're audible. There's one question from Gauri Kela. It's on the chat box. I don't know whether it is visible for you. She asks, when we face failures or clashes while learning, we are demotivated completely. What and how can we help ourselves push up and motivate always? See, sorry, ma'am, her name Gauri, right? Yeah, Gauri Kela. Yeah. Gauri, at first I'll tell you, there is nothing in life where you will get failed or anything. It's just that you have to be patient. That is what I have told you. See, ऐसा नहीं होता है लाइफ में कि आप पहली बार कर रहे हो और पहली बार में ही आपको सक्सेस मिलेगा. That's what I'll tell you my own example. So initially when I started with Arshvi, for first 6 months I never even had a single client. Can you imagine that part? मेरे पास एक्सपीरियंस था, मेरे पास नॉलेज था, मेरे पास अच्छा स्टाफ था. उस टाइम पे मैंने मेरा मतलब गोल नहीं छोड़ा है यार. मतलब मुझे पता था कि आज नहीं है कल, बिकॉज
I know about my abilities. I can do it, that I'm very sure on that. I have a very good staff, I'm very sure on that, and I'll get the customers, I'm very sure on that part. So you are the one who can keep yourself motivated. You don't need anybody else's motivation because everyone's journey is different. जो आज मैं कर रही हूँ वो आप लोग नहीं कर रहे हो because you are on some other path, I'm on some other path. But that doesn't mean कि मैं जो रास्ते से चल रही हूँ वहाँ पे अगर मुझे थोड़ा बहुत पैर को लग भी जाता है तो मेरी जिंदगी खत्म है. तो that वो बस छोटी सी चोट है जो आपको लगी है. You don't need to think on that part. You have to be self-motivated. That is what I'm telling you. Whenever you feel demotivated, whenever you feel you're facing the failures, read about the big people, how they have made it. Have you heard of Narendra Modi ji, how he has done it? Yes. अगर वो सोचते थे कि मैंने चाय बेचा यार मैं पंतप्रधान कैसे बनूंगा, मुझे नहीं लगता वो कभी पंतप्रधान बने होते. See, so this is how it starts. It starts with a very small thing. You have to think on ki what are my abilities. If I'm good in that, how I can improve myself. Give the sampling, start doing the work, not for money, to know about your product. कि तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम्हारे नॉलेज एक्सपीरियंस है, जब वो रेडी होता है, जब तुम उसको एक्चुअली मार्केट में पुट करते हो. सी कैसे रहता है कि मैंने एक स्केच बनाया है तो मैं बहुत श्योर रहती हूँ वाओ कितना अच्छा स्केच है, मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ एंड ऑल. बट भाई आपके जैसे और 1000 लोग हैं मार्केट में, लाखों लोग हैं. सो हाउ यू आर डिफरेंट टू देम, दैट यू हैव टू प्रूव इट. और उसमें भी कैसे रहता है कि उसको एक मेथड रहता है. There are many people who have got the talent, who are very artistic, but they are not successful. There is only one reason behind it, कि they don't do the market research. They are not motivated. See, I'll tell you one thing, Neha. Sorry, Gauri, just Gauri. Gauri. So Gauri, what happens is, हमने कुछ तो करना है, मुझे किसी को कुछ दिखाने के लिए मैं करूंगी. जैसे ये सोच के जब आप करते हो आप डेफिनेटली फेल्योर रहते हो. लेकिन अगर आपको सच में कुछ करना है, लाइफ में कुछ एक एम है जो आपको अचीव करना है, तब आप क्या करते हो, आपको पता है अभी फेल हुआ यार, मैंने इसमें कैसे फेल हुई, या ऐसे नहीं जाना था, शायद इसका रूट कुछ और था, मैंने उस लाइन पे जाना था, आप ये सोचते हो. So mark my this point, whenever you think on this part, right, you will never feel like a failure, you will never feel demotivated, you will always see on the opportunities. अगर मैं ऐसे गलत जा रही हूँ, मुझे सही राह कौन दिखा सकता है, मैं अगर ऐसे गलत जा रही हूँ तो मेरा क्या तरीका हो सकता है. यू कीप रीडिंग ऑन दैट, गूगल करो ना, कितना इजी है. कोई प्रोडक्ट आपको सेल करना है, यू आस्क एनीथिंग टू गूगल, यू चेक ऑन ऑल द बुक्स, यू चेक विथ योर मतलब व्हाटएवर हूएवर इज क्लोज टू यू. Nobody will ever tell you कि आप ये नहीं कर सकते हो. That is what I've said. You ask question to anybody, anything in this universe, they will definitely give you an answer. And there is a way. See, तुम लोगों ने focused रहना है. You have to be patient and you have to be self motivated. अगर आप ये 3 चीजें करोगे ना गौरी, I don't think आपके पास में खारी मुरी भी होगी ना, आपको बहुत बड़े स्केल पे बेच दोगे. It is all about how you keep yourself motivated. That's it. Ma'am, sometimes it happens like we are very clear with our aims and ends, but something fails. What is that something and why it is going fail? That you have to study on that. And when we are becoming like audible. Yeah, you are audible. Hello. Yeah, you are Ma'am, audible. Yeah. If we are facing any failure, like if something whatever I'm making, I'm a learner, and while making anything, say I'm making an embroidery and it doesn't work, it becomes not like it's not appreciable. So it happens with me that I get I'll tell you when it demotivated. No, listen. You know when it happens? It happens when it comes with the comparison. You got my point? So when I'm doing my work, मैं तब अकेली करते रहती हूँ. समझे, अभी ज्योति मैडम है, आपको उनको कुछ प्रोजेक्ट दिखाना है, तो तुम जब खुद से प्रोजेक्ट करते रहते हो तुम बहुत श्योर रहती हो because you are just focused on your project, right? You are not seeing here and there how people are working and how best they are making than yours. But when it goes to the ma'am, definitely she'll compare, right? तुम्हारे काम में और मेरे काम में अगर फर्क आ रहा है और अगर मेरा काम तुमसे बेहतर है तो definitely ma'am will praise me and not to you. But that doesn't mean कि तुम्हारा अच्छा नहीं था. That means कि you need to be more improved. That means you have to put more efforts to that particular project. Then only the outcome will be as per your willingness. You got my point? Yes, ma'am. Thank you. Yeah. Thank you. I think that was the last question. Yeah. That was the last question. Okay, ma'am. So now as we come to the end of this webinar today,
I request Adarsh Chavan sir to propose the vote of thanks for today's session. Uh, Mute kara, unmute just the mic, sir. Yeah. Hello. Yes, sir, you're audible. Hello, everyone. It is my privilege to propose a vote of thanks for today's webinar. I am Adarsh Chavan. On behalf of entire C Cyber and CNC VCW, family and volunteers, extend a vote of thanks to the honorable delegate who blessed us their presence and took a valuable time of their busy schedule. I must mention our deep sense appreciation for Ms. Shraddha Sontake for her work. Thank you, sir. Especially like Ms. Shraddha Sontake's speech, where she mentioned some important view about enterprises and labor management in clothing industry. The way he explained the topic was very effective. I also wish to express my gratitude to our principal, Dr. A.R. Kulkarni sir, for providing encouragement and support. I am very thankful and grateful to respected Dr. R.A. Sindhe sir, Secretary C Cyber, Kolhapur, and HR Sindhe sir, Trustee Member C Cyber, giving us an opportunity to organize the webinar. A heartily thank to all the participants for the active participation in the webinar. As no program can become successful with a single person, so I extend my big thanks to our HOD and IQAC coordinator, Mrs. Jyoti Hirimat, Fashion Design Department, and all the staff members for their support, and all our students too. Thank you all making this webinar successful with our contribution. Thank you, sir. Thank you once again. And today's webinar is conclude with the permission. Thank you. Thank you, sir. I have a small announcement to make. Great, thank you everyone. We appreciate you being here. Our upcoming webinar is on 7th of July. Actually, we celebrate 7th August as the National Handloom Day. But 1 month before the National Handloom Day, we are planning to organize one of the session on National Handloom. The topic for the webinar will be the synergy of handloom and fashion, trends to look forward to in fashion post-COVID. Okay, by Miss Vaishali Menon, who is a design educator, presently has settled in Bangalore. Thank you. Hope to see you on Tuesday, 7th of July at same. The webinar will be at 10 o'clock. We'll send the links through your email IDs. Thank you. So I conclude that today I come to an end and announce that this webinar is over. Thank you, everyone. Thank you, ma'am.